علاقوں میں رہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، مختلف ہنر حاصل کریں گے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وحیدہ تفصیل سے بتائیں گی کہ کون کون سی فیلڈز ہیں جس میں یہاں لوگوں کو تربیت دی جائے گی، لیکن خواتین کے لیے الگ ہے، نوجوانوں کے لیے الگ ہیں، مختلف فیلڈز ہیں۔ آئی ٹی ان کو سکھائی جائے گی، میکینک یہاں سے بن سکتے ہیں وہ، اور ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے وہ دی جائے گی۔ کنسٹرکشن کے حوالے سے ان کو سکھایا جائے گا، بچیوں کو بیوٹی پارلر کا کام سکھایا جائے گا، کڑھائی سلائی اور ڈیزائننگ جو ہے وہ سکھائی جائے گی۔ تو بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک انہوں نے ایڈورٹائز نہیں کیا کہ ہمیں یہ ضرورت ہے درخواستوں کی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا 500 کی ان کی کیپیسٹی ہے، اور مجھے بتا رہے ہیں کہ 600 درخواستیں ان کے پاس پہلے سے آئی ہوئی ہیں، اور میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اپنی شفٹ جو ہے وہ بڑھائیں۔ تو یہ 2 شفٹوں میں اگر جاتے ہیں تو 1000 ہو جائیں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں سندھ حکومت فنڈز دے تو ہم 3 شفٹوں میں بھی اس کو چلا سکتے ہیں، تاکہ 1500 کی تعداد میں جو ہے وہ بچے ہم ایک وقت میں یہاں سے ان کو تربیت دے سکتے ہیں۔ تو چیف منسٹر صاحب نے پہلے بڑی مہربانی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مدد اور تعاون کے بغیر، ان کی دلچسپی کے بغیر یہ ادارہ بحال نہیں ہو سکتا تھا، یہ ادارہ چل نہیں سکتا تھا۔ اتنی انہوں نے مہربانی کی ہے۔ تو ابھی چونکہ حکومت میں 6-7-8 دن ہیں، ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ خرچہ ان کا زیادہ ہوا ہے اس کی ریہیبلیٹیشن پر بھی، اور جو 3 شفٹیں چلانا چاہتے ہیں اس میں جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ CM صاحب وہ پوری کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام انہوں نے مطلب سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، کام تو پہلے ہی بہت اچھا کیا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ Thank you, Mr. Ghani, for your valuable words. Ladies and gentlemen, now we would like to welcome our chief guest of this ceremony, the Chief Minister of Sindh, Honorable Syed Murad Ali Shah, to express his thoughts. Please give a big round of applause for the Chief Minister. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عزرا پیچو، منسٹر ہیلتھ، سعید غنی صاحب منسٹر لیبر، سلیم جلبانی صاحب، ڈاکٹر سلیمان شیخ، زیبرسٹ کی ناٹ بی کمپلیٹ وداؤٹ یو بینگ دیر، ظہور شجرا صاحب، مانڈوی والا صاحب، باقی زیبرسٹ کے جو شہناز فضیلی صاحبہ، رائمو صاحب، آپ سب کو، وحیدہ نیسر صاحبہ، السلام علیکم۔ بڑی خوشی ہوئی ہے ادھر آ کے۔ یہ بات چلی تھی، سعید ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایک بہت پرانا بلڈنگ خراب پڑی ہوئی ہے، اتنی خراب تھی مجھے اندازہ نہیں تھا، نہیں تو اسی وقت ہم پیچھے ہٹ جاتے کہ یار یہ کہاں سے بنے گی، لیکن انہوں نے اس کو چیمپئن کیا کاز کو۔ زیبرسٹ کے پاس گئے، جیسے انہوں نے کہانی بتائی کہ باتوں باتوں میں بات شروع ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے آج ہم سب جو دیکھ رہے ہیں ایک ایسی انسٹیٹیوٹ اعظم بستی جیسی جگہ میں بنی ہے جہاں پہ اس علاقے کے لوگ، خاص طور پہ بچے اور بچیاں مستفید ہوں گے۔ میں ساروں نے کہانی سن لی ہے، سعید نے بتائی، آپ نے ویڈیو بھی دیکھ لی، زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ آج کے دن کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج صبح میں ایک ایونٹ میں گیا، سردار شاہ صاحب بیٹھے ادھر، میں نے سنا تھا آئے ہوئے نہیں پہنچے ابھی، سردار شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے اگین آج سے 4 مہینے پہلے اپریل میں ایک آرگنائزیشن مجھ سے ملی، کچھ لوگوں نے ریفر کیا، وہ آ کے مجھ سے ملے، اور انہوں نے افریقہ میں کام کیا ہوا تھا۔ بچوں کو جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، جو 7، 8، 9، 10 سے 15 سال کے ہو گئے اور کبھی اسکول نہیں گئے، ان کو ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام، نان فارمل ایجوکیشن تو ہم بھی کر رہے ہیں بہت جگہ پہ، اور وہ ڈیجیٹل لرننگ کے تھرو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اور وہ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسے نہیں آئے ہیں، ایک اسکول آلریڈی کھزری میں وہ دیکھ چکے تھے، اور انہوں نے مجھے اس کی کچھ ویڈیوز شیئر کی بچوں کی جو ادھر سے پڑھے تھے، اور مجھے حیرت ہوتی بتایا انہوں نے کہ جی یہ بچہ ہے، کبھی اسکول نہیں گیا تھا، میرے خیال ہے اس کی 11 یا 12 سال کی قریب عمر تھی، اور 1 سال میں وہ میرے خیال ہے آرام سے اپنے گریڈ ایکولٹ نہیں تو
ग्रेड इक्वलेंट हो सकता था। 11 साल का बच्चा क्लास 4, 5 में 6 में होता है, उसकी नॉलेज उसकी उन्होंने देखा। मैं बिलीव नहीं कर रहा था, मैंने कहा ये बच्चा शायद पहले से पढ़ा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने मुझे वो दिखाया और फिर मैंने शुरू किया। मैंने उनसे कहा कि हम तैयार हैं, सिंध हुकूमत आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। अप्रैल है, 2 स्कूलों के हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इनिशियली विदाउट एनी बिडिंग। अगर ये 2 स्कूल आप मुझे जून में तैयार करें तो मैं बजट में पैसे रख दूंगा उसके लिए। दे टुक अप द चैलेंज एंड दोज 2 स्कूल्स वर रेडी। 6 जून को उन्होंने मुझे कहा कि आप आए, हमने स्कूल खोल दिया है। मेरे ख्याल 8 या 10 को मैं बजट दे रहा था और आई वाज सो बिजी, मैंने कहा नहीं आप चलें, आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, आप बता रहे हैं तो हम इसको बजट में रख रहे हैं। आज मैं उधर गया अगस्त, वो स्कूल उन्होंने फिर छुट्टियों के लिए बंद कर दिया था, फिर पिछले हफ्ते खोला उन्होंने। और उधर के लोकल लोग जो थे, ये रजाकाबाद में, मलीर में, वहाँ इलाका जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ भी बिजली की बातें हुई, तो उस स्कूल में तो उन्होंने सोलर लगा। स्कूल क्या एक कमरा है, एक कमरे में वो 25 बच्चों को एक वक्त में पढ़ाते हैं, 4 शिफ्ट्स करते हैं, तो 100 बच्चे उस इलाके के थे और उनकी उम्रें थी 7-8 साल से लेके 11-12 साल तक के बच्चे उधर थे। और उनको टैबलेट्स दी हुई थी। कहते हैं ये 2 से 3 दिन में हमें इन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती करना क्या है, दे लर्न फ्रॉम द टैबलेट्स। एक सुपरवाइजर है खातून जो वो घूमती रहती हैं, इसलिए कि ये बच्चे उसी से सीखे। मैंने उधर ही जो 2.5 हफ्ते टोटल इन बच्चों ने पढ़ा था और मैंने पूछा, उनके माँ बाप से पूछा, उन्होंने बताया कि कभी स्कूल नहीं गए। कुछ थे जो स्कूल के ड्रॉप आउट से इसलिए कि सेकेंडरी लेवल पे नहीं गए थे, लेकिन उनको से नहीं मिला मैं। और वो अल्फ़ाबेट पूरा जानते थे, उर्दू, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, 2 डिजिट्स जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब दिस वाज ऑल थ्रू डिजिटल लर्निंग। और हमने उनके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट किया, हम 100 स्कूल्स कर रहे हैं। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आज के दिन में सुबह मैं इस इवेंट पे गया हूँ और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी हमारी ज़ैबिस्ट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। और उधर ही मैंने बात की थी और उनके साथ एक और चीज़ भी कर रहा हूँ, तो वो है कि हम कुछ बच्चों को तो शायद एक्सेलरेटेड लर्निंग करके उस ग्रेड तक पहुंचा दें, 2 साल में 5 साल का काम करा दें फॉर इंस्टेंस, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हम फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं भेज सकेंगे। और उसके अलावा एक दूसरा भी इशू है कि हमारे पास इस वक्त मैट्रिक करा दिया, इंटर करा दिया, कोई स्किल नहीं सिखाते हैं हम। तो इन्हीं बच्चों को जब उनके पास बेसिक्स आ जाएं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, तो आप इनको कोई स्किल की तरफ ले जाएं। और उसमें मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, उसी साहब ने जो मुझे जिन्होंने ये कहा था, वो गए IBA सक्खर, और IBA सक्खर में उन्होंने एक कोई उनको मिल गया था बंदा, 2 साल पहले उन्होंने एनिमेशन की क्लासेस सिखानी शुरू की थी और उसमें 50 बच्चे थे। और उस एनिमेशन की क्लासेस में उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, दीज आर 15 to 20 ईयर ओल्ड्स, जिन्होंने ज़्यादा होंगे शायद थोड़े से, मैट्रिक किया हुआ था, मैट्रिक रिक्वायरमेंट थी टू एंटर इनटू दिस। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त $2000 मंथली कमा रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि एक और प्रोग्राम मैं करना चाहता हूं कि इन बच्चों की प्रमोट होके जो कि फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे। वो हमने कहा लर्न टू अर्न, उसका स्लोगन रखा है और अभी ये शुरू है और मैं चाह रहा हूँ अगले 5-6 दिन में इंशाल्लाह इसको भी मैं शुरू करके जाऊँगा। उसके अंदर इन्हीं बच्चों को बेसिक वो स्किल्स एजुकेशन देने के बाद स्किल सेट डेवलप करेंगे और ये स्किल्स, उनका अगला स्टेप होगा ज़ैबटेक, उनका अगला स्टेप होगा आज़म बस्ती, और कुछ जो IT की तरफ जैसे मैंने कहा जाएंगे। और इन्हीं बच्चों के थ्रू आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है,
इकोनॉमी और इकोनॉमी क्या डॉलर, मतलब हम जिन बच्चों को इस वक्त समझ रहे हैं, और हमारे यहाँ अक्सर ये ख्याल है, उसमें हमारी अपनी गलती है कि जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है, उस पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से जो बच्चे हैं वो एक लाइबिलिटी ना बन जाए हमारे लिए आगे जाके, बट इन्हीं बच्चों को हम लाइबिलिटी नहीं अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करेंगे। अगर एक बच्चा $2000 कमाएगा मुल्क में, एक तो अपने माँ बाप का, अपने घर का ख्याल रखेगा, और जो हमें ज़रूरत है मईशत को, फॉरेन एक्सचेंज की, जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज़ हैं, वो सब इन्हीं के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा, ये बड़ा अच्छा है कि सुबह मैंने उन बच्चों से मिला हूँ जो कि 7 साल के, 8 साल के थे, उनके साथ बैठ के वो टैबलेट्स पे जो काम कर रहे थे वो देखा। और अभी इधर आज़म बस्ती में हमने जैपटेक की मदद से, जैबिस की मदद से जो काम किया है इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, एक स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये खोल दिया है। मैंने बड़ा ब्रीफली देखा है, इसके अंदर आईटी, जो मुझे ऑटोमेशन, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का था एक सेक्शन, तो मैंने वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स वगैरह देखी थी, कमरे से गुजर रहा था, और फिर ऊपर बताया कि लेडीज़ के लिए अलग है। इससे बेहतर काम कोई और नहीं हो सकता। हमने अपने यंगस्टर्स को एक ऐसी जगह स्किल दे के, और वो इस माशरे में एक माशरे का मुफीद हिस्सा बने। तो इंशाल्लाह करेंगे। सईद ने चलते हुए बात की थी, सलीम ने कहा था अच्छा पैसे की कमी नहीं, मैंने कहा पैसे अगर खर्च कर सकते हो तो कमी नहीं है, पैसे के ऊपर अगर बैठ जाओगे खामखा और किसी और को खर्च करेंगे तो वो नहीं अवेलेबल, ठीक है। जो चाहिए आपके पास, अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं आज मेरा तीसरा इवेंट है, अभी 2 और पे जाऊंगा आज मैं, और हर जगह जाके ये कह रहा हूं, हम 3 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं कुछ दिनों में। 3 महीने का काम अगले 3 दिन में मेरे से करा ले, इसलिए केयरटेकर के पास कोई काम वाम करने का शौक नहीं होता। हम जाएंगे और वापस आएंगे, और ये 3 महीने का काम अभी खरीद करके चल के चले जाएंगे। तो जहां पे भी कोई जरूरत है, और मैं उसके बाद गया था डाउ यूनिवर्सिटी, वहां पे चाइल्ड लाइफ का इवेंट था, जो हमने अगेन हेल्थ मिनिस्टर साहिबा की बड़ी मेहनत से और सबने मिलके ऐसा काम किया है कि पूरे सूबे में हम ये क्लेम कर सकते हैं, बल्कि क्लेम क्या, ये हकीकत है कि कोई भी बच्चा किसी इमरजेंसी रूम से 30 मिनट के ज़्यादा फासले पे नहीं है पूरे सिंध में इस वक्त, चाहे वो फिजिकल या हमारी जो क्या कहते हैं उसको, टेलीमेडिसिनिंग जो है उसके थ्रू, और ये प्रूव किया है। और इसका फर्क भी आया है। 2016 का जो सर्वे था मिक्स का, यूनिसेफ करती है, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, 1000 में 104 बच्चा हमारा बच्चा रह नहीं पाता था, और वो घट के अब 46 हो गया। 2021 की हमारे पास नंबर्स है, 5 सालों में 50% से ज़्यादा उसमें कमी आई है, और इंशाल्लाह ताला इस वक्त मेरे ख्याल है और बेहतर हमने किया है। और ये सब किया है डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास 2 फ्लड्स आए, कोविड आया, और एक बहुत बड़ी बीमारी थी जो चली गई, एक और, उसके बारे में अधिक नाम नहीं ले सकते, उसका फैल जाती है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद सिंध हुकूमत ने इन 5 सालों में परफॉर्म किया, और ये मैं बड़े अथॉरिटी से बड़े प्राउडली ये कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में, बाकी तीनों सूबों को मिला लें, वफाक को मिला लें, सिंध हुकूमत ने सिंध के लोगों के लिए जो पिछले सालों में हमारी लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पे, हम सब ने जिस तेजी से काम किया है, जिस तरीके से, डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस, वो मैच नहीं कर सकते। और अगर आप कहेंगे मुझे सारा दिन लग जाएगा ये बताने में, अब प्रॉब्लम्स बहुत हैं, अभी भी बहुत कुछ हमने करना है, इसीलिए 3 महीने में वापस आएंगे कंटिन्यू करने। तो हमने स्टेबिलिटी इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाई। जब सईद मुझे वाउच करेंगे, डॉक्टर अजरा करेंगी, 2018 अगस्त में हमने ओथ लिया था
सितंबर के अंदर हमने वो बजट एक पास करना था 3 महीने बाद, और उस बजट के दौरान जब मैं तकरीर कर रहा था तो हमारे दोस्त जो थोड़े से पटड़ी से उतर गए थे वापस पटड़ी पे चढ़ गए कुछ उनमें से, वो सामने खड़े हुए दिन गिनाते थे सिंध हुकूमत के कि 10 दिन 15 दिन, और गिनतियां गिनते थे मेरे से 4-5 फुट के फासले पे खड़े हुए। सब्र से काम लिया हमने। वो सारी की सारी तीनों सूबों की और वफाक की हुकूमतें कम से कम एक बार, कहीं कहीं तो 2 बार बदली हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रही है और इंशाल्लाह ताला अगले दफे इसको पूरे पाकिस्तान में हम लेके जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मिनिस्टर साहिबा, आप प्लीज जो रिक्वायरमेंट है मैं सिर्फ ये कहूँगा मेरे तक पहुँचा दें और जल्दी पहुँचाएं। डोंट मेक इट सच के जी वो करना मुश्किल हो जाए, लेकिन हम पूरी तरीके से, ये अगले डेडलाइन है हमारी 9 तारीख, वो मैं आपको बताऊंगा। 9 तारीख असेंबली नहीं जा रही है, वो रहेंगी 9 तारीख हमारी आखिरी कैबिनेट होगी। तो 9 तारीख से पहले हमने अप्रूव करना है। दैट मीन्स हमें उससे 4-5 दिन पहले सारे केस आ जाने चाहिए। और हम, मुझे बता रहे थे कि 125 मिलियन फॉर दी 3rd शिफ्ट, नो इश्यूज। कब करना है कोई नहीं, मैं चाहता हूं कि इस इलाके के बच्चे, इसलिए कि ये 125 मिलियन जो है ना रुपए, ये मेरे लिए $2 अरब बनाएंगे आगे जाके यही बच्चे। तो ये घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये जारी रखेंगे ऐसा काम। मैं एक बार फिर ज़ैबिस्ट को मुबारकबाद, ज़ैबटेक को मुबारकबाद देता हूँ। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने काम किए। सईद आपकी को मुबारक भी हो। और उसके साथ साथ अभी कहते हैं ना, फिल्म अभी शुरू हुई है, अभी आगे बहुत कुछ करना है। वो अभी तक तो ट्रेलर दिखाया, अभी तो पूरे पाकिस्तान में फिल्म चला दी हमने इंशाल्लाह। तो आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी मुझे आज इधर बुलाया। जैसे मैंने कहा कि आज का दिन पर्टिकुलरली अच्छा इसलिए कि मैं जहाँ गया हूँ 3 जगहों पे, तीसरा मेरा आज का इवेंट है, और जो मेरे जहन में बात थी या दिल में बात थी वो आप सच करके दिखा रहे हैं। मैं एक आखिरी बात कह दूं, जब 2018 में 2016 में सलीम साहब थे उस वक्त हमारे, मैंने ओथ लिया था एज चीफ मिनिस्टर पहली बार, और मैंने जो पहली तकरीर की थी उसमें मैंने एक अफ्रीकन प्रोवर्ब था वो कहा था, और वो था कि इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, हाँ, अलोन आई कैन गो फास्ट बट टुगेदर वील गो फार। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ